Hello guys, good evening. I am Saharsh from Prep Guru. We have launched this amazing initiative wherein we are teaching students for the CUET examination that was held for the first time last year. In that examination, GK forms a very important part of that examination, and for that matter, I have come in front of you today to talk about some of the GK aspects and how GK is to be dealt in the paper. And I have also decided to explain it to you what has been going on in the news for a while, because if you see, there has been a lot of news in the recent newspaper articles and there has been a lot of fuss regarding the budget. तो हमारे लिए बजट का प्रोविजंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. आप ये समझें कि हमें 2023 और 2024 के बजट को तो स्पेशली पढ़ना है CUET perspective से. We don't have to go into that much detail, but still some important aspects and some important points and terminologies of the budget may be asked in the examination, which is why our particular focus should be on the key features of the budget of 2023 and 2024, which is why I have also put this document in front of you, which was uploaded by the Ministry of Finance itself, that talks about the key features of the budget. तो आज की हमारी कुछ क्लास इस तरह की दिखेगी. पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे जनरल नॉलेज के बारे में और फिर हम डायरेक्टली हमारे टॉपिक ऑफ द टुडे विच इज़ की फीचर्स ऑफ द बजट 2023 एंड 2024 पे विल डेव डायरेक्टली इनटू दैट. नाउ व्हाट इज टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स और व्हेन वी टॉक अबाउट अदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ जनरल नॉलेज इन कंटेक्स्ट टू द CUET एग्जामिनेशंस. अपार्ट फ्रॉम अदर एग्जामिनेशंस जो कि आपने दिए होंगे या आप स्टूडेंट्स जो देते हैं वो एग्जामिनेशंस, फॉर एग्जांपल द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जिसमें जीके पूछी जाती है, और फॉर दैट मैटर एनी अदर एग्जामिनेशन जो कॉलेज के बाद भी लोग देते हैं, जैसे UPSC हो गया. UPSC इज़ वन एग्जामिनेशन जहाँ पे जीके बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन देयर इज PCS एग्जामिनेशंस. व्हाट आई वांट टू टेल इज that you don't have to do that level of preparation which is required ideally in a UPSC examination or a PCS examination. For you to actually sail through CUET and sail through CUET's GK, all that is required is just a gist of all the important news that are recurrent in the newspapers. What did I say? मैंने बोला कि वो न्यूज़ जो न्यूज़पेपर में ज़्यादा आती हैं, वो पर्टिकुलर आर्टिकल्स या वो पर्टिकुलर करंट अफेयर्स जो कि आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एडिटोरियल्स में ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है, बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड दैट टू नॉट इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल. जैसे बजट का अगर आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तो इट्स अ ह्यूज डॉक्यूमेंट, बट फॉर अस CUET स्टूडेंट्स इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हम पूरे बजट का एनालिसिस करें. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट वी लुक एट द की फीचर्स ऑफ द बजट, because that is what is important for us from the exam point of view. तो कुछ पहले बातें हम समझ लेते हैं अपने बजट के बारे में. तो if we talk about the budget, the first thing that becomes important, and I want you to actually write this down in your notes, is that budget is presented as per the provisions of Constitution of India. एक second, I'm sorry. As per the provisions of Constitution of India, which was enacted in the year 1950. इसमें provisions डाले गए. I am pretty sure that everyone by now knows what the Constitution is. It's the supreme rule book of the country, on the basis of which the country is governed and on the provisions of which you are given your substantive rights, which you call fundamental rights: the right to live, the right to education, the right to religion. Everything, the basis of everything traces back itself to the Constitution of India and that supreme book which is governing the fabric of the country. Now, under that Constitution of India, there are several articles, 395 to be total, और in total 395 articles हैं, जिसमें से article 112, again not that important, but yeah, very good way to actually set the tune of the lecture and talk about the budget. Article 112 of the Constitution talks about the union budget. Article 112 of the Indian Constitution talks about the union budget and says that every fiscal year the finance minister of India, who is Miss Nirmala Sitharaman for now, just आपके लिए ट्रिविया के लिए, because GK is also all about connecting the current affairs with the static, that becomes really important. तो अगर हम अभी करंट फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर को भी जान लेना चाहिए. फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वाज मिस्टर R.K. Shanmugham Chetty, who bought
the first budget of independent India on 26th November 1947. This was the first time when the budget in Indian or independent India was presented. तो independent India में पहली बार बजट जो है वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश के मिस्टर आर.के. शनमुखम चेती 26 नवंबर 1947 में लेके आए थे. ऐसी ट्रिवियाज मैं आपको देता रहूंगा बीच बीच में, बिकॉज इट इज वेरी इसेंशियल फॉर अस टू नॉट let's say separate our studies when it comes to current affairs and static. That has to go in consonance. So whenever you're reading anything which is of importance in current affairs, your first motive, irrespective of what examination you are preparing for, किसी भी examination के लिए अगर आप prepare कर रहे हैं, आपका पहला motive ये होना चाहिए कि आप उस सारी चीजों की static भी उसी टाइम पे लिंक करके समझ जाएं. So for your understanding, the static part of the budget, what is important? Number one, that the budgetary provisions are given under the Constitution of India. The Constitution of India was enacted in the year 1950. And under the Constitution, which has in total of 395 articles, article number 112 of the Indian Constitution talks about the union budget. Another trivia which becomes important as when it comes to the context of static GK is that it is bought by the finance minister. The current finance minister of the country is Miss Nirmala Sitharaman, and the first finance minister of the country was Mr. R.के. शनमुखम चेती, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट लेके आए थे on 26th November 1947. Okay, I hope you have written this down. Now what becomes important now is to understand the key terms, because unless and until हमें ये नहीं समझ में आएगा कि ये terms का meaning क्या है, we cannot understand how the budget functions. और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा because this is not an economics paper, this is a GK paper. तो जितना GK के लिए required है उतना आपको समझना चाहिए, और I think it's also my responsibility that I ensure that you understand only things that are relevant for the examination, and you do not fall for the trap of going into and studying all of the things, because that is a vicious trap. You don't have to do that. You only have to do things that are relevant for the examination. जितना ज़रूरी examination के लिए ये है, ये जानना है कि examination में क्या आएगा, उतना ही ज़रूरी examination में क्या नहीं आएगा ये जानना भी ज़रूरी है. तो इसमें हम कुछ terms को देखते हैं. पहला term तो हम समझ लेते हैं GDP, which is the gross domestic product. Formulas में मत जाइए, they will never ask you the formula, it's not a math paper. But basically the total goods and services that are dealt in the country within a year, जितनी goods and services accumulate हुई हैं, जितने expenditure हुए हैं, जितने revenue किए गए हैं, जितनी भी चीज़ें हुई हैं in the total year, the sum total of all goods and services divided by the total population of the nation will give me the GDP of the nation. So that is what GDP, what is meant by GDP. अगर आप दूसरे कंसेप्ट में आ जाए जो कि आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा बजट में यूज होते हुए, इज द कंसेप्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट. ओके, नाउ व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? अगर हमें सरल भाषा में समझना है इसे, आई एम प्रीटी श्योर दैट यू कैन मार्क अप डेफिनेशंस, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ नॉट अ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जहां पे आपकी स्टेप मार्किंग हो रही है. दिस इज अ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन व्हेन यू हैव टू टिक द राइट ऑप्शन. So it's better that you understand all these complex terms in such a simple language कि आपके लिए कल को difficult ना हो to eliminate the wrong options and choose the right options. तो fiscal deficit का मोटा मोटा meaning अगर हम समझें तो is meant by whenever government is acting as an agency, let's say जैसे आप हैं, अगर आपके पास पैसा आता है तो आपका पैसा दो चीज़ों में जाता होगा, ठीक है. एक एक्सपेंडिचर में जाता होगा जिसको हम खर्च भी कहते हैं, ठीक है, खर्चा कह लीजिए इसे. दूसरा सेविंग्स में जाता होगा, ठीक है. अब सेविंग्स और इसमें अगर आपको डिफरेंस देखना है एक्सपेंडिचर में, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है एक्सपेंडिचर खर्चा करना होता है और जो खर्चा करने के बाद बच जाता है उसे हम सेविंग्स कहते हैं. English literal meaning of the word deficit is deficiency, kami. Comes from the word deficiency.
वेनेवर देयर अराइजेज अ सिचुएशन जहां पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और उतनी सेविंग्स या उतने एस्टिमेटेड बजट्स नहीं होते हैं उसके पास, मतलब उसके एक्सपेंडिचर एक्सीड हो जाते हैं। दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द एक्सपेंडिचर्स एक्सीड द एस्टिमेट, द सम टोटल, एंड दैट लीड्स टू डेफिसिट, कमी। उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट होता है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय फिस्कल डेफिसिट। इसका उल्टा शब्द जो है, जो इसका एंटोनिम है, दैट इज सरप्लस। एंड रेस्ट एश्योर्ड, वाइस वर्सा लॉजिक से आप बता पाएंगे कि सरप्लस क्या है। जब एक्सपेंडिचर कम हो, जितना हमने एस्टिमेट किया हो उससे, तो हमारी सेविंग्स ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा होंगी। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस, दिस इज वेरी बेसिक। But what is important for our perspective is to understand the concept of fiscal deficit. And for that, it becomes essential to understand that even like yourself and for everyone who has money, there are two purposes of money. One is expenditure and one is saving. Where you expend more and you save less, or let's say where your expenditure is more than what you thought or what you required, you meet a situation which is called as fiscal deficit. ठीक है? तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज दैट ऑफ द की फिगर्स दैट आर देयर इन द बजट। नाउ अगर ऐसे आप देखें तो बहुत ढेर सारे की फिगर्स हैं। यू कांट एग्जैक्टली रिमेंबर द न्यूमेरिकल अमाउंट ऑफ ऑल ऑफ दोज फिगर्स, जैसे किस स्कीम में कितने ज्यादा पैसे अलॉट किए गए हैं, बट देयर आर सर्टेन सम्स और सर्टेन परसेंटेजेस that you have to keep in mind because they might be asked as an MCQ. So first of all, what you have to note down is कि total expenditure जो है बजट का इस बार, ये हमेशा estimate किया जाता है, ठीक है, because it is very difficult to give a fixed number. Is estimated at around 45.03 lakh crores. कितना? 45.03, मतलब लगभग 45 लाख करोड़ के फंड्स एलोकेट हुए हैं एज टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन द बजट, कि 45 लाख करोड़ में होना चाहिए। पिछले साल का कुछ 39 लाख करोड़ के आसपास था, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पिछले साल से ज़्यादा है बिकॉज इस बार एजेंडाज भी ज़्यादा हैं, हम वो एजेंडाज डिस्कस करेंगे, अभी इस डॉक्यूमेंट में सारे हैं, ठीक है। तो द टोटल एस्टिमेट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट माइट बी आस्क्ड एज एन एमसीक्यू। व्हाट इज द टोटल एस्टिमेट, total expenditure estimate for the budget of 2023 and 2024? You will mark the correct answer as 45.03 lakh crores. That becomes our answer and that becomes very important for the exam point of view. Now, अगर हम इस साल के इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो करंट इकोनॉमिक ग्रोथ, if I write it as CEG, I hope you will understand this, but anyway let me write it. करंट इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो दैट इज एस्टिमेटेड, अगेन एस्टिमेट किया जाता है कि इतनी ग्रो करेगी हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी, ठीक है। तो करंट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एस्टिमेटेड है एट अराउंड 7%, ठीक है। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं होता है, ये एस्टिमेट लगाया गया है कि 7% हमारी ग्रो करेगी। और स्पेशली इन द केसेस, नाउ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, जस्ट लिंक इट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू गो एंड रीड अबाउट इन डिटेल, बट आपको मालूम है अभी ग्लोबल टर्मोइल चल रहा है, ठीक है। देयर हैज बीन अ क्लियर कट क्राइसिस, अ सप्लाई क्राइसिस दैट हैज बीन क्रिएटेड इन द ल्यू ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, द सप्लाई चेन क्राइसिस एज वी वुड वांट टू कॉल इट, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर स्टक and are not able to receive the supplies that they were ideally, receiving before the war, and which is why you can see that the global economy is going into shackles. Even if you see that, you might have read in the newspapers that rupee is devaluating against the dollar at an exponentially high rate. But let me tell you, at the same time, it was not only the case with the Indian rupee. There were a lot of other global currencies and other global markets wherein currency devaluation was happening and the economy was going into shackles. तो global ही economy का हिसाब किताब अच्छा नहीं रहा है। उस context में, and considering that background and given that consideration, 7% की economic growth fairly ठीक मानी जाएगी। अगर आप मुझसे पूछें तो 7% की growth ठीक मानी जाएगी, ओके। अब आ जाएं आप दूसरे फिगर पे जो कि है फिस्कल डेफिसिट का। They might ask about the fiscal deficit, so I just want you
to please pay attention to this. You can even write it down. If you don't want to write it down, you can pause the video, watch it again till the moment you understand कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. तो फिस्कल डेफिसिट मैंने जैसा बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके एक्सपेंडिचर आपके जितनी आपकी लिमिट है, जितना आपका एस्टिमेट है, उससे थोड़े बढ़ जाते हैं. इन दैट सिचुएशन यू एनकाउंटर अ सिचुएशन और यू एनकाउंटर अ मैकेनिज्म जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, और वो मैकेनिज्म जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कितनी नैया डूबी है, ठीक है, हम कितना फिजिकल डेफिसिट में है. अगर मैं आपको फिगर्स लिखवाना चाहूँ वेरी क्विकली, सो 2022 to 2023 if you look at it, the fiscal deficit was pegged at 6.4%. Okay, now if I talk about the year 2023 to 24, which is the current year, it has been estimated and it has been also, let's say, affirmed or ensured by the finance ministry that it will be lowered down, and it will be lowered down. अगर आप मुझसे पूछे तो हाँ 5.9% तक lower down होगा और ये सही टारगेट है, ठीक है. इसके बाद वाला टारगेट becomes a little difficult to achieve because that will require government's consistent let's say efforts or admiration for the economic policies and welfare economic schemes, because unless and until वो नहीं आएगा and that does not come into place, something like which I am going to write right now, which is the fiscal deficit supposedly for the year 2025 and 2026, they want it to be below 4.5%, which is not that an easy task if I tell you, because अगर आप देखें ग्लोबल इकोनॉमी में या इंडिया की इकोनॉमी को देखें तो अपार्ट फ्रॉम myriad of issues, there are a lot of issues. Let's say आप तो सुनते ही आते होंगे, the one of the major problems in the economy is that of unemployment. And all of these problems are cured by welfare policies. Who is interested with forming these welfare policies? The government. तो गवर्नमेंट जब तक इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेगी, जब तक इंश्योर नहीं करेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल ऑफ दीज अदर थिंग्स दैट आर लेट्स से एक्टिंग एज एन हिंड्रेंस फॉर अस टू बिकम अ सुपर ग्लोबल इकोनॉमी और फॉर आर इकोनॉमी टू प्रोपेल, उस चीज़ों के लिए ऐसी चीज़ों का हटना बहुत ज़रूरी है. और ऐसी चीज़ें हटेंगी वेलफेयर इकोनॉमिक स्कीम से, तो वेलफेयर इकोनॉमिक स्कीम्स का आना भी बहुत ज़रूरी बन जाता है. तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको एक क्लियर आंकड़ा हो चुका है. आप इस आंकड़े को नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं. एंड विद दैट आई विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द डॉक्यूमेंट एंड उसमें क्या क्या फीचर्स लिखे हुए हैं उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं. अच्छा, एक और चीज़ जो थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि मैंने आपको बताया कि 26 नवंबर 1947 26 नवंबर 1947 को मिस्टर आर.के. शनमुखम चेती presented the first budget of the independent India. But if you ask me when was the first budget of India presented, तो मैं इंडिपेंडेंट इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, फिर my answer should be in the year 1860 by a gentleman called Mr. James Wilson. Mr. James Wilson was the first person to actually present the first budget. ये ईयर थोड़ा इंपॉर्टेंट है. इस ईयर के आसपास काफ़ी चीज़ें हुई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आई. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अगर आप पूछेंगे इस ईयर के आसपास का, तो दैट बिकम्स मैकॉलेज आईपीसी. आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट दिस, बट हमारे देश की जो दंड संहिता है, जिसको हम इंडियन पीनल कोड भी कहते हैं, वो भी इसी साल के आसपास बनना चालू हुई थी, ठीक है. एंड आई थिंक 1860 में ही एनैक्ट हो गई थी, और मे बी आई थिंक 1861. But yeah, it was around this time when Macaulay had started working on IPC. So it was a very important kind of an year. इसमें पहली बार बजट भी आया गवर्नमेंट का, एंड पहली बार लॉज कोडिफाइड किए गए क्रिमिनल लॉ, जिसमें हमने आईपीसी के बारे में देखा कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड, जिसमें सारी पनिशमेंट और ये सारी चीज़ें होती वो इसमें आई. खैर, ये हो गई हिस्ट्री की बात, ठीक है. तो इसको भी आप लिख सकते हैं, and it might be asked as an MCQ, so it's like all the more better for us to just be aware of the information. Anyway, so what are the key features of the budget? Let us look at this document. It's not a very big document, and I think काफ़ी अच्छे से encapsulate किया है सारी चीज़ों को. तो I think it will be very clear for anyone who's looking at the document and looking at the pictures, because it's like very vibrant kind of a document.
तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या क्या चीज़ों की बात की गई है। तो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू we can directly move towards the key features of the budget, having explained to you a little bit of the history of the budget, about the constitutional basis of the budget, and also explaining you how the fiscal deficit and how the economy is projected to grow. I think it's high time that we understand the key features of the budget. Not too much in detail, but some of the important goals might be asked in the examination, and that becomes very important for you from the point of perspective of examination. तो उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने इस पूरे साल को या इन पूरे एजेंडास को कंप्लीट करने के विजन को अमृतकाल का नाम दिया है। तो अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट के विजन की, तो गवर्नमेंट का विजन फॉर नाउ इज दैट ऑफ अमृतकाल। अब अमृतकाल में क्या क्या चीजें आती हैं? अमृत का मतलब समझते ही होंगे आप लोग। अमृत इज सपोज टू बी समथिंग वेरी पायस, ओके। एम्ब्रोजिया बोलते हैं इंग्लिश में वैसे, जो भी है खैर, बट हाँ आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। इट गिव्स, इट्स सपोज टू बी अ गुड कॉनोटेशन, इट हैज टू हैव अ गुड कंटेक्स्ट एट द एंड ऑफ द डे। सो नाउ व्हाट इज द विजन फॉर द अमृतकाल? गवर्नमेंट की क्या विजन है उनको देख लेते हैं, ठीक है। वेरी इजी, डज नॉट नीड एक्सप्लेनेशंस, बट when you are trying to recollect all of these things, let's say you're sitting in the examination and you are not able to recall all of those, it's better that you look at the buzzwords. जॉब क्रिएशन buzzword है, opportunities for citizens buzzword है, तो आपको अगर याद ना भी हो तो I think some of these words would stick with you after this lecture, and that will make your job easy for let's say elimination or like choosing the right option or whatever. But हाँ, आपके लिए ये जॉब easy हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग दैट इज फर्स्ट विजन ऑफ द अमृतकाल सेज दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजंस विथ फोकस ऑन द यूथ। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा सुनते आए होंगे आप लोग कि हमारी यूथ जो है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा आ गया है अब। इनफैक्ट इफ यू गो बाय द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स से कि हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या, हिंदी में अगर बात करूं, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, ठीक है। इन इंग्लिश इफ आई वांट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल हु आर एजुकेटेड लिटरेट एंड अनएम्प्लॉयड, ऐसी प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए ही अमृतकाल की विजन में फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव पेड स्पेशल हीड और हैव कंप्लीटली लेड एम्फेसिस ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ एंड ऑल्सो इंश्योरिंग दैट द सिटीजंस ऑफ द कंट्री आर ग्रांटेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये तो खैर कॉन्स्टिट्यूशनल गोल भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हर जगह यही कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए सिटीजंस के लिए, बट बजट बेसिकली क्या कह रहा है कि हमें और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी। इफ टू गिव यू जस्ट अ ब्रीफ आउटलुक, किस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में और किन फील्ड्स में आप इन अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे और अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करेंगे। आप देखिए, अब धीरे धीरे जैसे ग्लोबलाइजेशन अपने पीक पे जा रहा है, जैसे जैसे कंट्रीज आर ट्राइंग टू प्रोग्रेस, developing countries like India are now shifting their focus on a lot of areas. One of the most prominent areas is that of renewable energy. I don't have to give you an example. You might already know. If you don't, I think after this class you will know that India was one of the first countries to propose the idea of ISA. ISA is the International Solar Alliance, the biggest international body governing the solar energy and its distribution and its allocation within the UN members. तो इसमें अभी कुछ 110 आई थिंक, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट या मोर देन 90 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ ISA एंड ISA इज कंप्लीटली इंडियन है। इसका हेडक्वार्टर्स अगर आप देखोगे तो गुड़गांव में है। What do I want to explain by this, or what do I try to tell you when I talk about all of this? I'm saying that whenever there is an investment or wherever there is an emphasis on a particularly new domain, किसी एक अलग ही डोमेन में, किसी एक बहुत ही नए डोमेन में जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट की भी जो मतलब कि तरीके हैं वो बढ़ते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर द सिटीजंस इंक्रीजेस एंड दैट टू फॉर द यूथ, बिकॉज द यूथ आर द वंस हु आर लुकिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट द मोस्ट, ठीक है। जो आपकी ये एज होती है, एज ग्रुप होती है 20 to 30 इज द एज ग्रुप विच इज द मोस्ट डिजायरस ऑफ अ जॉब।
because everybody till the age of 30 or 30 above is considered, or not everybody basically, but in general people who are literate are considered to be working and employed. But that is not the case when it comes to the 20 and 30 years old, which are classified as the youth of the country. ये लोग यूथ हैं, ये लोग जॉब सीकर्स हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार का ऑब्लिगेशन है टू गिव देम एम्प्लॉयमेंट, विच इज वाई अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद स्पेशल फोकस ऑन यूथ बिकम्स अ विजन फॉर द अमृत काल. इसके अलावा कुछ भी नहीं जानना है आपको इसके बारे में, ठीक है. बस कंटेक्स्ट समझिएगा कि क्यों है ऐसा, स्पेशल फोकस क्यों है, नई जॉब क्रिएशन होगी तो किस एस्पेक्ट में होगी, किन तरीकों में होगी, तो इन सारी चीज़ों में होगी. देख लीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके लिए. रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स बढ़ेंगी अभी आगे चल के, जब इंडिया इसमें इन्वेस्ट करेगा तो. और जैसी जिस तरह से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग हो रही हैं, आपको मालूम हो ग्लासगो में हुई, इजिप्ट में हुई, पेरिस में हुई, इस तरह की मीटिंग जैसे जैसे हो रही हैं, हमारा क्लाइमेट चेंज को लेके, हमारा ग्लोबल वार्मिंग को लेके, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के यूसेज को लेकर नजरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है. Second, exactly as I told you about very early during the lecture, is that one of the major problems of the economy of the country is that of job creation. There is a lack of jobs when we compare it, when compared to the demand. The demand of the country, the demand of the youth is way too much, and the employment which is being generated in the country through private or public measures is not able to actually satiate or satisfy this need or this desire of jobs. Okay, the demand of jobs इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड लेट मी टेल यू, आपके लिए ये बात बताना, आई डोंट थिंक इट्स लाइक एनीथिंग मोर देन अ बट ऑब्वियस that employment and employment of the citizens is one of the most, or let's say foremost considerations अगर आपको अपनी इकोनॉमी को प्रॉस्पेरस बनाना है. तो इकोनॉमी प्रॉस्पर कब होगी? जब लोगों के पास बेसिक एमिनिटीज और जॉब्स होंगे. एंड ये भी समझिए, आपको समझने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ साइक्लिक आर्ग्यूमेंट. बिकॉज अगर बेसिक एम्यूनिटी होगी, बेसिक एम्यूनिटी में क्या आता है आप समझिए, हेल्थ आएगा. आपका हेल्थ का राइट होना चाहिए कि हेल्थ केयर सेंटर्स हो आसपास, अगर आप कभी कुछ चेकअप कराना चाहें तो चेक करा सकते हैं. एजुकेशन की राइट है आपके पास, ठीक है, और पब्लिक राइट्स हैं. तो ये बेसिक एम्यूनिटीज हैं, आपको मिलनी चाहिए. और ये आप तभी अफोर्ड कर पाएंगे जब आपके पास जॉब्स हैं. ये आप तभी अफोर्ड कर पाएंगे व्हेन यू हैव जॉब्स विथ यू. एंड व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट, व्हाई इज दैट साइक्लिक? बिकॉज नाउ जॉब्स की वजह से आपको बेसिक एम्यूनिटीज मिलेंगी और बेसिक एम्यूनिटीज की वजह से आपको जॉब मिलेगी. देखिए, इफ यू डोंट हैव एनफ मनी, इफ यू आर अनएम्प्लॉयड एंड यू डोंट हैव मनी, यू विल नेवर हैव एक्सेस टू बेसिक एम्यूनिटीज. हो सकती हैं, डेफिनेटली हो सकता है, कुछ पब्लिक फ्री हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, कुछ पब्लिक फ्री स्कीम्स हो सकती हैं. कई बार सरकार ऐसी योजनाएं निकालती हैं कि लोगों को एजुकेशन के लिए फ्री स्कीम्स दे दी, लोगों को बेरोज़गारी भत्ता दे दिया, लोगों को बेरोज़गारी भत्ता मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. ये सारी चीज़ें जब सरकार देती है उसको आप एक्सक्लूड कर दीजिए. बट इन जनरल, इफ यू आर अनएम्प्लॉयड एंड यू डोंट हैव मनी, इफ देयर इज नो जॉब्स विद द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, दे कांट अफोर्ड बेसिक एम्यूनिटीज. एंड वंस दे कांट अफोर्ड बेसिक एम्यूनिटीज, द इकोनॉमी विल नॉट प्रॉस्पर. तो इसलिए साइक्लिक आर्गुमेंट है, जॉब से बेसिक एम्यूनिटीज आएंगी, बेसिक एम्यूनिटीज से जॉब्स आएंगी, ठीक है. एंड इफ यू हैव द जॉब्स, यू कैन चूज और यू कैन इजीली अवेल दोज बेसिक एम्यूनिटीज. एंड व्हेन यू गेट बेसिक एम्यूनिटीज लाइक एजुकेशन, health and everything, you will be able to land a job. That is how it is related and that is how it's a cyclic argument, which is why you will find that job creation, unemployment and poverty alleviation schemes, क्या बोला मैंने? Job creation, unemployment and poverty alleviation schemes are your recurrent theme in the budget. किसी भी साल का बजट उठाइए, स्पेशल एम्फेसिस, स्पेशल फोकस अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन और पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स पे है. बिकॉज दीज आर रेकरेंट प्रॉब्लम्स विच आर हिंडरिंग द इकोनॉमी और हिंडरिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर नेशन टू प्रोपेल टू इट्स लाइक डिजायर्ड एंड आइडियलाइज हाइट्स. थर्ड पे हम आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट. ठीक है,
मैक्रो माइक्रो में क्या होता है? जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, आज जिन्होंने 9th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है उन्हें मालूम है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मोर इंडिविजुअल ओरिएंटेड। ठीक है, आप इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर मार्केट, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेके जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, जब हम नेशन की स्कीम्स पे इकोनॉमिक टर्म्स और इकोनॉमिक इंप्लीमेंटेशंस की बात करते हैं ऑन अ नेशनल लेवल, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ मैक्रो, लेट्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो स्कीम्स और व्हाटएवर, आई मीन द सेम थिंग। ओके, द डिफरेंशिएटर इज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो, यू आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन लेट्स से वन पर्टिकुलर यूनिट, वन पर्टिकुलर ग्रुप, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो, मैक्रो इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशन, भारतीय लेवल पे देख रहे हैं, ठीक है, या राष्ट्रीय लेवल पे देख रहे हैं तो मैक्रो कहलाएगा। तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जरूरत है। मतलब कि नॉट जस्ट इंडिविजुअली हमें काम करना है अपने स्कीम्स पे, अपने लेट्स से ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल्स पे काम नहीं करना है। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे काम होगा नेशनल लेवल पे। Through strong and stable macroeconomic environment. What is meant by that? That goes on to establish the fact कि आपकी कंट्री जो है, अगर मैं आपको एक कहानी बताऊं छोटी सी, ठीक है, आई वोंट गो मच इनटू डिटेल बिकॉज दिस इज नॉट अ लेक्चर दैट विल कंटेन इनटू और डेल्व इनटू द नेसेसिटीज ऑफ 1991 एंड लिबरलाइजेशन, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप 1991 से पहले इस देश की इकोनॉमी को देखें, ठीक है, या आप चाइना को ले लें, दोनों चीज़ों को समझिएगा ध्यान से। जब भी ये दोनों कंट्रीज को ले लीजिए, चाइना को देख लीजिए, इंडिया को देख लीजिए, जब ये फ्री मार्केट इकोनॉमीज नहीं थी, मैं बताता हूं आपको फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब। ठीक है, ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी का ये मतलब हुआ जब स्टेट इंटरवेंशन ज्यादा था। फ्री मार्केट इकोनॉमी ना होने का मतलब ये हुआ व्हेन स्टेट इंटरवेंशन, I am really sorry guys, my handwriting is not that good, but I'm pretty sure as I'm dictating and also writing, मैं बोल भी रहा हूँ और मैं dictate भी कर रहा हूँ, तो I'm pretty sure that you are able to comprehend what I'm able to write. क्योंकि और अगर नहीं भी हो पा रहा तो आप वीडियो रोक दीजिएगा, समझ जाइएगा कि मैंने क्या लिख रखा है। तो यहाँ मैंने फ्री मार्केट इकोनॉमी लिखा है और मैंने यहाँ लिखा है स्टेट इंटरवेंशन। स्टेट से मेरा मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है भाई साहब, स्टेट से मेरा मतलब गवर्नमेंट है, कोई भी तरह की गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट की बहुत बड़ी डेफिनेशन होती है लीगल टर्म्स में। एनीवे, तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिनिमम होगा। जब जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिनिमम होगा उतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमी और अपनी मार्केट फ्री बनती जाएगी। चाइना में एक शख्स आए थे डेंग हाओपिंग नाम के, जब तक वो नहीं आए थे तब तक चाइना भी एक क्लोज्ड मार्केट इकोनॉमी थी, और फिर चाइना ने अपने बॉर्डर्स खोले, लोगों को सामान देना चालू किया, और आज देखिए इट्स द डेवलपर ऑफ द world, developing everything, your lithium ion batteries, everything of which there is a clear shortage in the nation. I mean, if you read about news and if you read about, let's say, if you're interested in the science and tech news, you would come to know that there is a clear shortage of two things in the global market. One is lithium ion batteries and second is the semiconductors. Semiconductors के लिए तो चलिए ताइवान is supposed to be the major player, ठीक है, इसीलिए यूएस इतना सपोर्ट करता है, बट दैट इज फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस क्लास, वो आप उसके लिए छोड़ दीजिए। बट व्हाट यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर हियर इज दैट 1991 में वही चीज़ इंडिया के साथ हुई जो मैं चाइना के साथ कह रहा हूँ, जो डेंग हाओपिंग ने चाइना में की थी। 1991 में हमने लिबरलाइजेशन किया। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरल का मतलब होता है लेस स्ट्रिंजेंट, मतलब स्ट्रिक्ट ना होना, थोड़े नॉर्म्स को रिलैक्स करना। लिबरलाइजेशन हुआ इन 1991 एंड 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। इन रिफॉर्म्स में हमारी इकोनॉमी को खोला गया। वी इनवाइटेड फॉरेन प्लेयर्स एंड वी स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड वी स्टार्टेड डीलिंग विद फॉरेन प्लेयर्स, एंड व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड? इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट थ्रू स्कीम्स लाइक एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। थ्रू स्कीम्स लाइक एफआईआई, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बहुत ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी, और ऐसी स्कीम्स और ऐसे रिफॉर्म्स आने लग गए। लोग बाहर जाके काम करने लग गए, बाहर से लोग यहाँ आके काम करने लग गए, बाहर की कंपनीज यहाँ से डील करने लग गई। तो ऐसे धीरे धीरे एक स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की शुरुआत हुई।
And because of that particular reason, ever since that economic reform took place, one of the most primary goals of every budget, or let's say every financial plan, every financial scheme, is to ensure that the economy maintains a stable environment. मतलब hostile environment ना हो, खराब environment ना हो, ऐसा ना हो कि major economies, बड़े बड़े players, बड़ी बड़ी companies, for example Apple or let's say Google or Facebook are not, or let's say Amazon are reluctant, या वो हिचकिचा रहे हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने से. ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एफडीआई देश के लिए अच्छी चीज़ है. ठीक है, इतना समझिए आप. और हमारा ट्रेड भी बढ़े, हमारा इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेड जो कि हम दूसरे देशों के साथ करते हैं, ठीक है, वो भी बढ़े. और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तीसरा जो हमारा विजन था अमृतकाल का, वो भी बन जाता है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. Next important thing which is important for your examination is that of सप्तऋषि प्रायोरिटीज. सप्तम, इसको 7 से रिलेट करिए आप. ठीक है, ये शब्द ही यूज हुआ है बजट में, तो हमें ये शब्द याद रखना पड़ेगा. ठीक है, और सप्तऋषि की पॉलिसी अब आप समझिए. ठीक है, सप्तऋषि में अमृतकाल को 7 तरीकों से अचीव करने की बात की गई है और 7 प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट ने. ठीक है, वो 7 प्रायोरिटीज क्या हैं? सबसे पहली आती है इंक्लूसिव डेवलपमेंट. ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय इंक्लूसिव डेवलपमेंट? इफ आई जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट इन अ लेट्स से ब्रीफ फैशन, if I just have to understand how do I achieve my अमृतकाल with 7 priorities, हमें उन 7 प्रायोरिटीज को देखना पड़ेगा. उसमें से सबसे पहली है इंक्लूसिव डेवलपमेंट. इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहता है कि नो मैटर व्हाट स्कीम्स यू आर ब्रिंगिंग, ठीक है, गवर्नमेंट का काम होता है. ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसी बुक की जिसकी मैं बात कर रहा था, द सुप्रीम बुक, द सुप्रीम लॉ बुक ऑफ द कंट्री. उसमें ये लिखा है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एंश्योर दैट वेलफेयर स्कीम्स are adopted from time to time. What are welfare schemes? Welfare schemes are nothing but the schemes which are meant to help people or help alleviate the status of the people, help in the welfare of the people, betterment of the people. वो welfare schemes को लाने की responsibility किसकी है? Government की है. Inclusive development का जो idea है वो ये कहता है कि no matter what welfare schemes you're bringing, for the alleviation of let's say weaker sections or for the alleviation of all the citizens of the country, you have to ensure that उसमें inclusivity maximum रहे. Inclusivity maximum रहे मतलब every section and every strata of the society is covered and encompassed within the ambit of the welfare schemes sought to be proposed. मतलब कि कोई भी वेलफेयर स्कीम जो गवर्नमेंट लाना चाहती है, जो सरकार लाना चाहती है, उसमें एक चीज का मद्देनजर रखते हुए ही लाएगी कि वो किसी की बेहतरी के लिए हो, किसी भी सोसाइटी के किसी भी श्रेणी के बेहतरी के लिए हो, लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए कि सारी श्रेणियां इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेटस उसके बेनिफिट्स को क्लेम कर पाएं और वो बेनिफिट्स सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक रेस्ट्रिक्टेड ना रहे हैं. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय इंक्लूसिव डेवलपमेंट. बिकॉज इफ योर वेलफेयर स्कीम्स और वॉट एवर स्कीम्स गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग, लेट्स से गवर्नमेंट ब्रॉट आयुष्मान भारत, ठीक है, गवर्नमेंट उज्ज्वला स्कीम लेके आई और गवर्नमेंट ने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारी स्कीम्स लेके आई, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारे स्कीम्स लेके आए. अगर मान लो डिजिटल इंडिया को मैं लेता हूं, ठीक है, फॉर दैट मैटर लेट्स कंसिडर वन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, डिजिटल इंडिया. अगर ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ मेजरली एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे ही अप्लाई होती, लेट्स से पीपल हुज इनकम इज 8 लाख और अबव, आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम नंबर, ओके, this is just to explain you a hypothetical example. Consider that government would have come up with this weird or let's say very unusual kind of an idea that now this particular scheme of Digital India is only going to be applicable to people, or it can only be benefited, or only people who can be benefited by the scheme of Digital India are the ones who have an income of 8 lakh or above. क्या ये inclusive development है या exclusive development है? ऑब्वियस सी बात है कि एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट है, ऑन द फेस ऑफ इट आपको दिख रहा है.
Why? Because it is excluding all of those people who don't have this income. Okay, which is why it is very necessary कि आपकी जो schemes हैं वो discriminate ना करें दो लोगों के बीच में, irrespective of his political status. भाई डिजिटल इंडिया अगर discriminate करता तो गांव का हर बच्चा आज के डेट में, जिनके पास पैसे कम हो चाहे ज्यादा हो, आजकल व्हाट्सएप तो जरूर चलाता है, ठीक है, फेसबुक जरूर चलाता है। यह है इररिस्पेक्टिव, ध्यान रखिएगा, ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्राटा, इसके इररिस्पेक्टिव है, ठीक है। अब अगर ये चीज मैं समझूं तो मुझे ये समझ में आएगा कि भाई अगर ये एक्सक्लूसिव स्कीम होती तो आज हर बच्चा नेट से कनेक्टेड नहीं होता। तो इसका मतलब हो गया इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब जल्दी हम दूसरे पे आते हैं, रीचिंग द लास्ट माइल। ओके, रीचिंग द लास्ट माइल मतलब हम जितनी भी चीजें करना चाहते हैं, ठीक है, वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू अचीव, we have to understand that we have to take it up to the last level and reach the goal. How do we reach the goal? हम लास्ट माइल पहुंचेंगे कैसे? इन सारी चीजों की मदद से, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पहली चीज। थोड़ा सा अगर आप अंदर जाके पढ़ेंगे तो इसमें एग्रीकल्चर को स्पेशल फोकस दिया गया है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस दिया गया है। इसका कंटेक्स्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। देखिए, फार्म लॉज बहुत ज्यादा चर्चा में थे, न्यूज में थे, ठीक है, और गवर्नमेंट ने जो रैशनल दिया था फार्म लॉज लाने का, मैं गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव बता रहा हूं आपको, ठीक है। गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव ये था कि ये जो लोकल क्या कहते हैं ट्रेडर्स होते हैं, और जब तक आपकी पीएमसी मंडी और एमएसपी और ये सारे मैकेनिज्म्स और इन सारी चीज़ों से कोल्ड स्टोरेज और बाकी चीज़ों में जब सामान रखाता था या वेयर हाउसेज में सामान रखाता था तो सड़ जाता था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता नहीं था। प्राइवेट प्लेयर्स और प्राइवेटाइजेशन करने की वजह से लोगों ने ऐसा, जो गवर्नमेंट प्रोपोनेंट्स हैं और जो गवर्नमेंट लॉज के प्रोपोनेंट हैं, उन्होंने ऐसा कहना चालू किया कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी अगर हम प्राइवेटाइजेशन करें। बात मुद्दे की यह है कि फार्म लॉज रिपील हुए हों या ना हुए हों, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज irrespective of what people say, agricultural infrastructure and moreover general infrastructure and investment is a need of the country. And ये infrastructure और investment कैसे होगा? पहले investment होगा। We need players, let's say domestic players or even international players, to invest in booming infrastructure of the country. To invest in booming infrastructure. जब हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स से मेरा मतलब वही है, कंपनीज वगैरह जो भी है, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है। अभी यूपी इन्वेस्टर समिट हुई थी, मैं लखनऊ में था उस टाइम, कुछ मतलब कि साल पहले, तो मैंने देखा था यहाँ पे एप्पल के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए थे, टिम कुक भी मतलब आने वाले थे। आई डोंट नो वो आए थे कि नहीं, मैंने देखा तो नहीं था उन्हें, बट हाँ, a lot of companies actually came here in Lucknow and wanted to invest in India, heavily in India. So ये सारी चीज़ें हमारे देश के लिए अच्छी हैं, एंड हमारे बजट में ऐसा कहा गया है कि ऐसी और स्कीम्स जो हैं उस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट बनता है, मतलब थर्ड पॉइंट बनता है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। फोर्थ मैंने बता ही दिया है आपको, यूथ पावर बहुत ज़रूरी है। देखिए, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव द सपोर्ट ऑफ द यूथ एंड अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव द, लेट्स से, द यूथ ऑफ द कंट्री, जो आपके लोग हैं जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिशियरी हैं, जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट से एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं, जो सबसे ज़्यादा एजुकेशन डिजर्व करते हैं, इज द क्लास दैट बिलोंग्स टू द यूथ। एंड उनकी एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली यही यूथ तो जाके आगे चल के बड़ी होगी, यही तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे देश के। तो इनको एम्पावर करना बहुत जरूरी है, विच इज वाई द फोर्थ फोकस ऑफ आवर बजट एंड द फोर्थ पिलर ऑफ द सप्तऋषि इज यूथ पावर। ठीक है, पांचवें पे आ जाइए, फाइनेंशियल सेक्टर्स। बहुत संक्षेप में अगर आपको समझाना हो तो मैं ये समझाऊंगा कि फाइनेंशियल सेक्टर हैज सीन इट्स फेयर शेयर ऑफ टर्मोइल। बहुत दिक्कतें फाइनेंशियल सेक्टर ने कुछ हाल फिलहाल सालों में देखी हैं। ठीक है, उनमें से रेकरेंट दिक्कतों की बात करूं तो एक दिक्कत जो सबसे बड़ी है वो है एनपीए की दिक्कत। एनपीए को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है,
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को आप बैड लोन्स कह लीजिए, ठीक है, बैड लोन्स उनका ही हिस्सा है, वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। या कोई भी वो पैसा जो अब गवर्नमेंट सरकार या आपके काम रह नहीं गया, ठीक है, हो सकता है आपने किसी से लोन लिया हो, किसी बैंक से लोन लिया हो, आपने बहुत टाइम तक वापस नहीं किया, तो इससे बैंक का भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। आपका नुकसान इसलिए है क्योंकि आपको जेल हो सकती है, आपकी कुर्की हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, और बैंक का तो खैर नुकसान है ही, ठीक है। इसीलिए जब भी लोग लेके पैसे भागते हैं, जैसे नीरव मोदी और मेहुल चोकसी और ऐसे लोगों ने जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो पैसे लेके भागे हैं देश से, विजय माल्या जैसे लोग, उनकी वजह से क्या दिक्कत आती है? उनकी वजह से दिक्कत ये आती है कि हमारी कंट्रीज़ में एनपीए बढ़ते हैं, हमारी कंट्रीज़ के बैंकिंग सिस्टम में टर्मोइल आता है, टर्बुलेंस आता है, फ्लक्चुएट होता है कई बार। इसीलिए आप देखेंगे कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी में कई बार रेडिकल चेंजेस हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। आपका लोन टाइम पे ना वापस करना और बैंक की स्टेबिलिटी आर इंटरकनेक्टेड, माइंड यू, somehow, because if you read economics, and I try to classify economics as a science, whenever you read that, it will be very, let's say, but obvious for you कि हर एक चीज़ आपके इंडिपेंडेंट एक्शंस की वजह से नहीं है, वो एक्शंस डिपेंडेंट है किसी ना किसी चीज़ पर। खैर, तो फाइनेंशियल सेक्टर्स मैंने बता दिया। अब आ जाइए आप आखिरी में ग्रीन ग्रोथ। मैंने बताया रिन्यूएबल एनर्जी की कितनी बहुत ज़रूरत है, बहुत आपको मालूम है ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप समझिए कि अगर आप ओपेक को हटा दें, ओपेक असल में है क्या? ऑल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप ओपेक को हटा दें तो बाकी सारी इकोनॉमीज जो हैं वो चाहती हैं, एक्टिवली चाहती हैं, इनफैक्ट अभी तो ओपेक भी चाहती है कि एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम हो। हम फॉसिल फ्यूल्स और इन सब चीज़ों से पैसे नहीं निकाल सकते, कोल खत्म होने वाला है। When you see companies like Tesla, when you see people like Elon Musk reaching 200 billion net worth, it makes you ponder, or it makes you, at least just give a thought कि how much scope or how much betterment of the society renewable energy and green growth can do, which is why green growth becomes a very essential part of our Amrit Kaal. तो हमने 7 प्रायोरिटीज की बात करी, ठीक है। ये हमारी सप्तऋषि की प्रायोरिटीज हैं। आई वुड वांट यू टू एक्चुअली रिमेंबर दिस। बाकी इसके अंदर जो भी एक्सप्लेन करना था वो मैंने आपको कर दिया। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हेन इट कम्स टू योर एग्जामिनेशन। आ जाइए अब नीचे वाले पोर्शन पे। नीचे वाले पोर्शन में हमें एक और चीज़ थोड़ी समझनी ये पड़ेगी कि हम जब भी इन प्रायोरिटीज की बात करेंगे, अब हम देखेंगे कि हम बजट जैसे जैसे पढ़ेंगे, हम जैसे जैसे एनालाइज करेंगे, आप भी जब बजट के कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में चीज़ें पढ़ेंगे, तो आप हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सारी स्कीम कहीं ना कहीं इन चीज़ों से रिवॉल्व करते हुए ही पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में आपको ये फोकस जरूर दिखेगा। देखिए ये प्रायोरिटी रहेगी, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो इनसे एसोसिएटेड होंगी, या अगर इनसे अलग हैं तो हमेशा ये मद्देनजर रखते हुए होंगी कि ये प्रायोरिटीज डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। Now, if we can come to the other perspective, which is that of agricultures and cooperatives, बहुत जल्दी अगर हमें समझना हो तो हमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए फार्मर्स को बहुत दिक्कत होती है इस चीज से। क्यों? क्योंकि भाई उनका गुड्स जो है वो वेयर हाउस में पड़े सड़ रहा है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर टू देन नॉट सस्टेन लॉस होंगे उसे, एंड वो लॉस वो सह नहीं पाएगा। उसकी इतनी लेट्स से कैपेसिटी नहीं है, या इतनी नेटवर्थ नहीं है, इतनी उसकी लिमिट ही नहीं है फाइनेंशियल कि वो ये लॉसेस सहे, और रेकरेंट लॉसेस तो वैसे भी नहीं सह पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट वी कम टू हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसको लिख लीजिए। क्या पता आपसे पूछ ले कि हॉर्टिकल्चर के लिए हमने कौन सी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की है अभी गवर्नमेंट ने अपने बजट में। तो ANB हॉर्टिकल्चर क्लीन प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स व्हेन इट कम्स टू हाई वैल्यू और हाई हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है। उसको बूस्ट करने के लिए ANB हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम लॉन्च होगा। मिलेट्स को श्री अन्न नाम से कहा गया है, ठीक है, क्योंकि मिलेट्स जो हैं वो काफ़ी मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। मिलेट्स और पल्सेस के लिए फेमस है आपका वो मतलब क्या कहते हैं इंडिया। और आप अगर समझें तो मिलेट्स से मेरा क्या मतलब है, मेरा जवार बाजरा ये सब जानते हैं आप, ये सब कुछ मिलेट्स ही हैं। ये कुछ तरीके के मिलेट्स हैं, ये इंडिया में काफ़ी पाए जाते हैं। और ये मिलेट्स और पल्सेस के लिए तो जाना जाता है इंडिया, ठीक है। और UN के भी कुछ कन्वेंशंस आते रहते हैं। तो हाल ही में अपने UN ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस भी डेजिग्नेट किए हैं UN के ईयर्स में। खैर वो is for a different discussion, but what you have to understand is that Shri Anna is the name that is given to millets,
and support is to be given to Hyderabad IIMR, which is the institute in Hyderabad, for promoting the research when it comes to millets and their growth. आप जानते होंगे कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस हो गई है। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हम सबसे बड़ा श्रेय देते हैं MS स्वामीनाथन जी को। अगेन वन ऑफ द ट्रिवियाज, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको बताता जाऊंगा कि स्टैटिक और करंट को कैसे लिंक करना है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इफ इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इज मिस्टर MS स्वामीनाथन। ever after MS Swaminathan introduced his unique, let's say, innovations in the agricultural regime or in the agricultural sector of the country, we have always been on a roll, because obviously technological advancement बढ़ते गए, linearly बढ़ते गए, पीछे तो आए नहीं हैं। तो उसकी वजह से हमारे कई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गए। उनमें से अगर मैं एक का एग्जांपल आपको बहुत संक्षेप में दे दूं तो हमारे पास IVF सीड्स की फैसिलिटी अब आ चुकी है, जो कि हाई यील्डिंग सीड्स हैं, हाई यील्ड वैरायटी HYV सीड्स। सॉरी, ये काट दीजिएगा, ठीक है, बीच से। हाँ, मैं वापस से चालू करता हूँ। तो हमारे पास, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस अगर मैं बात करूं आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या हुए हैं, तो HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो हैं, वो एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है टू टॉक अबाउट हाउ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव प्रोग्रेस्ड व्हेन इट कम्स टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन द कंट्री। ठीक है, तो इसलिए हैदराबाद में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है IIMR नाम का, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप श्री अन्न और मिलेट्स पे रिसर्च करिए, R&D करिए और उसमें बताइए, उसकी रिपोर्ट सबमिट करिए, ये बताने के लिए कि हम मिलेट्स को कैसे एज अ गुड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, एज अ गुड डोमेस्टिक यूसेज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ की रिपोर्ट और इन सारी चीज़ की रिसर्च और R&D करने के लिए IIMR हैदराबाद को चूज़ किया गया है। इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत यह है कि श्री अन्न मिलेट्स को कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाइए आप टारगेटेड फंडिंग में कि एग्रीकल्चर में टारगेटेड फंडिंग कितनी है। तो 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट किया गया है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। सम ऑफ द सेक्टर्स आर मेंशन्ड हियर। वन इज द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर, ऑब्वियसली आपका मीट और ये सारे सेक्टर, डेयरी हो गया और उसके बाद से फिशरीज हो गया। ठीक है, इन सेक्टर्स में है, तो इसको ध्यान से आप देख सकते हैं। इट इज जस्ट नथिंग टू बी एक्सप्लेन, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द क्वांटम ऑफ द फंड और द क्वांटम ऑफ द टारगेटेड फंडिंग विच इज 20 लाख करोड़। Quickly moving on to the other two parts, setting up widely available storage facilities. Yes, I just talked about it. आपको अभी बताया कि अगर आप थोड़ी बहुत फार्म लॉज और इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे थे तो आपको समझ में आया होगा कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट साइड यू आर इन, आप फार्मर्स का सपोर्ट कर रहे हैं, आप प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट यू कांट डिनाई द पॉसिबिलिटी, आप इस बात को झुठला नहीं सकते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी की जो हालत है आज के डेट में फार्मर्स की, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लीक और बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो स्टोरेज कैपेसिटी एनहांसमेंट becomes another important agenda when it comes to the agricultural sector reforms in the budget. Storage capacity reforms or let's say betterment या storage capacity enhancement, कुछ भी शब्द यूज कर लीजिए, शब्द तो मतलब बहुत है अंग्रेजी लैंग्वेज में, लेकिन हाँ ठीक है, समझ में आना चाहिए उसका मीनिंग। और इससे क्या होगा कि इससे फार्मर्स की रेम्यूनरेशन जो है वो एनेबल होगी और बढ़ेगी। क्यों, समझिए। अगर मान लीजिए एक फार्मर है जो कि 100 किलो गोभी उगाता है, ठीक है, पीक ईयर में उसने 100 किलो गोभी उगाई, वो सारी तो एक दिन में बेचेगा नहीं, जो बची है मान लो अगर वो 10 किलो लेके जाता है बाजार में बेचने के लिए तो 90 kg बची है। ठीक है, 90 kg इज लेफ्ट। अब ये जो 90 kg बचा हुआ है ये वो किसी स्टोर हाउस में रखेगा, किसी वेयर हाउस में रखेगा। अगर उस वेयर हाउस की इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज अच्छी नहीं है, वो वेयर हाउस अच्छा नहीं है, वहां पे सड़ने का चांस है, वहां चूहे हैं, वहां जानवर है, कई चीजें हैं, तो वो उसका 90 kg का जो स्टॉक है जिसपे वो कमा सकता था, फॉर एग्जांपल अगर मान लो 1 kg पे, सॉरी 90 kg का जो स्टॉक है, मान लो 1 kg पे वो 1 kg जो गोभी है वो 20 रुपए की देता है, तो जो 90 पे है वो 1800 रुपए कमा सकता था। कमा सकता था कि नहीं कमा सकता था? वो 1800 रुपए का रेम्यूनरेशन उसका रुक गया। क्यों? बिकॉज आपके वेयर हाउस में वो फूड्स सड़ गए। अब अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा एग्री सेक्टर को तो दिस काइंड ऑफ अ मेसअप विल नॉट हैपन। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ऑन पॉइंट होगा तो ये चीज मेसअप कभी नहीं होगी।
और इसी तरह से वो 1800 रुपए जो उसके आइडियली उसके जेब में आने चाहिए थे वो आएंगे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रखेंगे। इसीलिए इट विल एनहांस फार्मर्स रेम्यूनरेशन बाय एनेबलिंग सेल एट एप्रोप्रिएट टाइम्स। जब चाहो बेच दो, गुड्स तो सही ही पड़े हैं। अगर गुड्स आपके सड़ गए हैं तो आप जब चाहो तब सेल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सेल एट एप्रोप्रिएट टाइम्स। दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। दिस इज अ ग्राफ, यू जस्ट हैव टू लुक एट इट। आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो क्रेडिट है, ठीक है, मतलब जितना पैसा अलॉट किया गया है एग्रीकल्चरल सेक्टर को वो बढ़ाई है 2015 से। हमें मुझे लगता है यहाँ स्टार्ट है, जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2015 से है और 2022 तक के आप देख सकते हैं। तो दिस इज अ गवर्नमेंट रिलेटेड स्टैट एंड यू कैन सी दैट द फिगर हैज ऑलवेज इंक्रीज्ड ओनली, ठीक है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी आप देखें तो कहीं ना कहीं कुछ 2 सालों से पिछले स्टैग्नेंट रहा है और कुछ 1 साल ज़्यादा कम रहा है, थोड़ा आपको दिख रहा है। बट फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी हम ठीक ठाक करते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स में हम सबको फूड अन्न सारी चीज़ें पहुंचा पा रहे हैं। अभी भी हम ये नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, लेकिन हमारे फूड ग्रेन स्टॉक और हमारे बफर स्टॉक में फूड ग्रेन्स हैं। ये अच्छी बात है हमारे नेशन के लिए, बिकॉज हमारे नेशन में बहुत ज़्यादा लोग हैं एंड वी आर ऑल डिपेंडेंट अपॉन फूड। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सबका साथ सबका विकास। इसको समझ लीजिए भाई, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये बोलते रहते हैं मोदी जी एंड अ लॉट ऑफ बीजेपी लीडर्स, यू वुड सी यू नो द सेंट्रल गवर्नमेंट लीडर्स टॉकिंग अबाउट सबका साथ सबका विकास। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, याद रखो। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मीनिंग मैंने आपको अभी बता चुका है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब ऑल वेक्स ऑफ लाइफ। ऑल वेक्स ऑफ लाइफ में आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि जो है हर जगह कितने भी सेक्शन, किसी भी सोसाइटी के किसी भी हिस्से से अगर आप आ रहे हैं तो आप ये समझ लें कि आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल, कैसा भी बैकग्राउंड आपका हो, जो गवर्नमेंट की बेनिफिट्स हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनका बेनिफिट आप तक अवेल हो पाए, आप उसको अवेल कर पाएं। हेल्थ में देख लीजिए, 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस टू बी एस्टैब्लिश्ड। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू बी लॉन्च। एनीमिया एक प्रचलित बीमारी है हमारे देश में, बहुत लोग मर जाते हैं उससे हर साल। तो उसके लिए सिकल सेल एनीमिया एक, आई थिंक सिकल सेल एनीमिया इज अनदर kind of disease of anemia. I'm not very sure because I'm not from the bio background, but I'm pretty sure that you can go ahead and, like, you know, Google what sickle cell anemia is. But all I can tell you that, because I'm a GK teacher and I know more about the GK, is that a lot of people in the country are infested and actually infected with this sickle cell anemia, and a lot of people also die. कैसे होता है, क्या होता है, वो हमारी क्लास का पर्पस नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक मिशन लॉन्च करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसको एलिमिनेट करने की बात करेगा। फार्मास्यूटिकल्स को रिसर्च करने के लिए और प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, मॉनेटरली भी हो सकता है, आप पैसे दे दीजिए फार्मा कंपनीज को अगर कोई बहुत ब्रेक थ्रू आइडिया है, या तो आप उनके इनिशिएटिव्स को बाई गवर्नमेंट स्कीम्स सपोर्ट करें, ठीक है। जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू बी एनकरेज्ड वाया ICMR लैब्स, ठीक है। ICMR लैब्स अलग अलग जगहों पे जाके जॉइंट रिसर्च करेगा विथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो एंड विथ पब्लिक हॉस्पिटल्स ऑल्सो। क्यों? क्योंकि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए, एवर सिंस कोविड आउटब्रेक हैपेंड, वी गॉट टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ रिसर्च, because it was only with due research that somebody was able to finally come up with a vaccine and somebody was able to finally defeat the disease. अगर हम पहले से इन सारी चीज़ों के R&D करके रखेंगे, हम देख पाएंगे कि बैक्टीरिया और किस किस तरह के फॉर्म्स ले सकता है, वायरस किस किस तरह के फॉर्म्स ले सकता है, और हम उसको बहुत क्लोजली स्टडी करेंगे, तो हम क्या पता ऐसे आने वाले कई ढेर सारे पैंडेमिक्स को अवॉइड कर पाएं, ठीक है। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे, विच इज एजुकेशन एंड स्किल, ठीक है। एजुकेशन एंड स्किल्स में पेडागोजी मतलब टीचिंग मेथड पे थोड़ा ध्यान दिया गया है कि एजुकेशन जो दिया जा रहा है बच्चों को और जो लोग एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रिवैम्प्ड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। व्हाट डज इट मीन? It says that there will be district institutes that will be set up by the government of education and training, okay, and in those institutes of government which are there for the education and training, teachers की revamped training होगी, ठीक है। टीचर्स को ट्रेन करने को बोला जाएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी विल बी सेटअप, हैज ऑलरेडी बीन सेटअप। अगर आपने अभी तक यूज नहीं की है तो यूज करिएगा। कई बार वेबसाइट एक्चुअली आई थिंक बिकॉज इट्स अ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर वेबसाइट विच इज मैनेज बाय दैट, आप कोई भी वेबसाइट जो NIC की मैनेज वो देखेंगे कि मतलब क्रैश बहुत ज़्यादा करती है, बट अगर खुल गई तो आपकी अच्छी किस्मत है। प्लीज़ गो एंड सी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में ठीक ठाक चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, आपको काम आएंगी।
स्टेट्स को एनकरेज किया जाता है टू सेटअप फिजिकल लाइब्रेरीज एट पंचायत एंड वार्ड लेवल्स। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में जहां जहां पंचायत है वहां पे वार्ड लेवल्स और पंचायत लेवल्स, तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो छोटे छोटे लेवल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट में तो खैर लाइब्रेरी है फिर भी, लेकिन विलेज लेवल पे भी, उससे भी छोटे लेवल पे आप फिजिकल लाइब्रेरी सेटअप करिए ताकि वहां के लोग एजुकेशन का फायदा उठा पाएं। ठीक है, इसके अलावा आई थिंक नाउ आई विल डायरेक्टली कम टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक। अब हमने समझ लिया कि हमारे सप्तऋषि क्या हैं, 7 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज क्या हैं। पूरे बजट को तो समझना आई डोंट थिंक इज वेरी नेसेसरी फॉर योर एग्जामिनेशन, बट आई वुड स्टिल वांट कि आप बजट के जितने भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं उनको थोड़ा पढ़ें। ठीक है, उसके बाद हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जो एक और चीज़ बच जाती है रिगार्डिंग बजट, वो ये है कि आप ये समझ पाएँ कि हमारी बोरोइंग्स, हमारी टैक्स सेविंग्स, हमारे टैक्सेस और ये सारी चीज़ें अलॉट होकर जाती कहाँ हैं, कैसी होती हैं और कौन इनको देखता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके जितने भी टैक्स होते हैं वो एक चीज़ होती है, एक बॉडी होती है जिसको हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, उसमें जमा होते हैं। इंडिया पब्लिक पर्स कह लीजिए इसको। ठीक है, कैग नाम की एक बॉडी होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लिख लें अगर चाहें तो। ये इसको गार्जियन ऑफ द पर्स कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, अभी गिरीश चंद्र मुर्मू इज द करेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द कंट्री। एनीवे, तो ये डायग्राम बहुत अच्छा सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अपलोडेड, वो वहाँ से मैंने निकाल लिया, आप भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। तो आपको समझ में आएगा कि देश का पैसा कहाँ से आता है। तो 15% इनकम जो देश की है वो कहाँ से आ रही है, इनकम टैक्स से। एक्साइज ड्यूटीज जो लगती हैं उससे 7% आ रही है। ठीक है, 15% यहाँ से, एक्साइज ड्यूटीज से 7%। कॉरपोरेशन टैक्स से 55% जा रहा है, जो बड़े कॉरपोरेशन और बड़ी कंपनीज पे टैक्स लगता है उससे 15% आ रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें लिख लीजिए। 101st अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है, ईयर 2016 में, और आर्टिकल 279A, आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज अ लिटिल मोर लीगल नॉलेज काइंड ऑफ ए थिंगी, बट स्टिल अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पूछा जाए तो आर्टिकल 279A टॉक्स अबाउट द जीएसटी काउंसिल और द बेसिस ऑफ जीएसटी। जीएसटी काउंसिल ही जीएसटी लेवी करेगी और कैलकुलेट करेगी, तो उसकी बात करता है। खैर, एनीवे, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू इज टू अंडरस्टैंड कि देखिए आप कहाँ से आ रही हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, 17% यहाँ से आ गई, 15% कॉर्पोरेशन पे जो टैक्स लगते हैं उससे आया, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7% आ गया, इनकम टैक्स से 15%। जितनी बोरोइंग्स हैं और बाकी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, जिन्होंने पैसे लिए थे या जिनसे पैसे लिए थे और बाकी लाइबिलिटीज, एक बहुत मेजर चंक कवर करती हैं। देख लीजिए, द मोस्ट आई थिंक मेजर चंक इज कवर्ड बाय देम विच इज ऑफ द 34%। नॉन टैक्स रिसीट, जो टैक्स रिसीट्स नहीं होते हैं, जो टैक्स से नहीं आते हैं, वो इनकम 6% है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स इज 2% एंड कस्टम्स ड्यूटी से 4% आता है। तो ये एक रफली फिगर है जहां से पैसे आते हैं हमारे देश में, अगर आप दूसरे कंसेप्ट को समझें इसी तरह से। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट, लेट्स से, वेयर डज द रूपी गो टू, तो हमारा सबसे बड़ा जो चंक है वो आप देखोगे इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है उन सारी चीजों पे हमारा मेजर चंक, कितना चंक, 20% रफली दिख रहा है हमें यहाँ पे, वो जाता है इंटरेस्ट पेमेंट्स में। उसके बाद से आप देखें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जिसमें मान लो आपको कोई स्कीम एलिवेशन स्कीम मिलती है, या मान लो एलपीजी सब्सिडी की एक स्कीम निकली थी, आई थिंक उज्ज्वला ही है, एंड इफ आई एम एबल टू रिमेंबर इट करेक्टली, उज्ज्वला स्कीम वाज द स्कीम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट टॉक्ड अबाउट एलपीजी सब्सिडी और फ्री एलपीजी सब्सिडी, एंड वो भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इस तरह की जितनी भी स्कीम्स आती हैं आप देख लीजिए, मतलब पीएम उदय स्कीम है और आयुष्मान भारत स्कीम है, कई स्कीम्स हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर पैकेज है, ये सब कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में आ जाता है। सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देता है, या अभी मैंने बात की थी एलपीजी सब्सिडी की, ठीक है, ये 7% इनकम लेती हैं। ठीक है, उसके बाद से आप आ जाइए डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर में काफ़ी स्पेंडिंग होती है। इंडिया आई थिंक 4th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर है। दे विल नेवर आस्क यू दिस क्वेश्चन, बट दे कैन आस्क यू हु इज द लार्जेस्ट स्पेंडर ऑफ डिफेंस, वो आप लिख दीजिएगा, यूएस आंसर है उसका। यूएसए इज द वन दैट स्पेंड्स द मोस्ट ऑन डिफेंस। एनीवे, 8% ऑफ द बजट एलोकेशन गोज टू द डिफेंस सेक्टर।
एंड देन 17% गोज टू सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जो सेंट्रल सेक्टर में स्कीम्स लगेंगी। रेलवे में कोई स्कीम लग रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी डिपार्टमेंट है, जैसे रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है तो उसके सेक्टर की स्कीम्स 17% लग जाएगी। PSU उनके अंदर आते हैं तो उन पर लग जाएगी। फिनेंस कमीशन को पैसा और फिनेंस कमीशन की फंक्शनिंग के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए 9% ज़रूरी है, 9% वहाँ पे जाता है। फिनेंस कमीशन के बारे में 2 चीज़ें याद कर लीजिए। ये फिनेंस कमीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, 5 साल की बॉडी होती है। द टेन्योर ऑफ द बॉडी इज 5 years, दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन। आर्टिकल भी मैं बता दूंगा लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, खैर जाके गूगल कर लीजिएगा। अभी जो है फिनेंस कमीशन के लिए 9% हमने ऐसा प्रोजेक्ट करके रखा है। स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी, जब स्टेट्स का जो शेयर होता है, जो स्टेट्स के पास लेजिट जाना चाहिए, ठीक है, सारे टैक्स आप तो नहीं रखेंगे, कुछ स्टेट्स भी लेवी करते हैं, वो टैक्सेस जो हैं वो 18% उसमें चले जाते हैं। बाकी जो एक्सपेंडिचर है, इसको हम मिसलेनियस कह सकते हैं, वो जो है 8% उसमें जाता है, ठीक है। Apart from that, just not to discuss with you because it is not that important, but to give you a very brief idea of what are the allocations that are made to specific ministries. I don't think they will ask you in the paper, but फिर भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है, ठीक है, 5.94 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट को 2.7, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 2.4, और इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट। पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एंड ये है आपका अलॉटमेंट ऑफ मेजर स्कीम्स इन करोर्स। कभी नहीं पूछेगा नंबर, लेकिन हाँ याद करना ज़रूरी है कि किस चीज़ में कहाँ कहाँ गवर्नमेंट की क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं। तो विद दैट आई थिंक वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। वेरी थैंक यू, एंड आई वुड वांट यू टू गो एंड एक्चुअली रीड अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, read about newspaper articles, and if there is any, let's say, doubt, let us know in the comments. We'll try to solve that at our first go and at our first instance. I hope you enjoyed the class. Budget becomes a kind of a typical topic, but अगर आप उसको typical तरीके से पढ़ेंगे तभी वो typical है। अगर आप वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए important है, then it's not that big a deal. I hope you enjoyed the lecture. Thank you so much.